Well, hello dear students, I hope you are fine. I'm extremely thankful for your positive reviews that you have been giving me for the last 2 to 3 days. I really feel that these are a motivation for me to continue my work. Moreover, I would mention that I have started a page on Facebook called CIE Simplified, where I would post the lectures, videos and also the notes for many subjects. So I would request you to please like that page even if you are not a CIE students, because your liking could make the projection of the page easier to those students who really need the help. Moreover, before starting the lecture today, I would request you to pray for the students of SAT, because they are going to appear on their SAT in the upcoming 3rd December. I really feel that this test is important for their progression to university, and I'm asking you to pray for them, because no matter who wishes, any wish could make the impact. It could be my prayers, it could be your prayers, or it could be the combined effect of the prayers which could actually help them out. So every wish counts. Before starting the lecture, I would request you people to understand another thing too. The papers for O-levels and IGCSEs is actually the same. Moreover, the papers of economics are also the same. So you must understand that if I am giving the lecture for O-levels, indirectly I am giving the lecture for IGCSEs. This was a point noted by some of the students, that you are not giving lectures for IGCSEs. Well, brothers or sisters, IGCSEs and O-levels have the same syllabuses for many subjects. Even the paper pattern or even the paper is the same for most subjects, including economics. And another point that was raised was that I was giving lectures for A-levels and O-levels combined. Well, the point is that these chapters which we are touching nowadays are actually exactly the same in both syllabuses. So it is better to save space and time by giving one lecture instead of 2 lectures. So moving on, today the topic of our discussion would be opportunity cost. This topic is the 3rd chapter of O-level economics, IGCSE economics, while it is the part of the 1st chapter from A-level economics. Here you must remember one thing, that this chapter has 2 parts, opportunity cost and production possibility curve. I would take the production possibility curve to another lecture. The reason for this is that it needs a practical solution to be shown, and at the moment I don't have you can say the proper arrangements for making you understand those things. So inshallah in the evening I will upload the lecture for the production possibility curve with the proper arrangements. But at the moment, a friend of mine asked me that he needs the urgent lecture of O-levels opportunity cost chapter, so I will help you out by giving the lecture at this moment. Usually I upload the lectures at night. So before starting, we are actually focusing on the definition of opportunity cost. Let me repeat, we are focusing on the definition of opportunity cost, because it is the definition that students don't understand actually and make many mistakes. For this reason, I would help you out by connotations in Urdu at the same time with English. So what is opportunity cost? First we will look at the constituent parts of the definition of the word. Opportunity means something that you can avail, something that you were given to avail, something you had the chance to avail, something that was being able to be done. अगर मैं उर्दू में कहूँ तो हम यूँ कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी वो चीज़ है, वो लम्हा है, वो चीज़ है, वो तरीका है, वो आइडिया है जो आप कर सकते थे. हर वो चीज़ जो आप कर सकते हैं थे, आपके पास मौका था, वो आपकी अपॉर्चुनिटी है. अब अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल कैसे करते हैं वो आपके ऊपर होता है. इसको अगर हम यूँ देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी क्या है, मैं आपको कहूँ कि अपॉर्चुनिटी की एग्जाम्पल दो, तो आई कुड से कि आई वॉज फ्री फॉर दिस 1 hour. आई हैड 4 options to do. I thought I would visit a friend, मैं किसी दोस्त के पास जाऊंगा. फिर मैं सोचा कि आई ऑल्सो कैन वॉच टीवी, मैं टीवी देखूंगा. थर्ड, आई वुड रिकॉर्ड लेक्चर, मैं लेक्चर दूंगा. अब तीनों में से मैं जिस चीज़ को डिसाइड करूंगा वो रेड सील बन जाएगी, और जो मैं नहीं करूंगा वो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसी ख्वाहिश, एक ऐसी आस मैं पूरी नहीं कर पाया, या एक ऐसा मौका जो मैंने अवेल नहीं किया. आई होप कि आपको अपॉर्चुनिटी का मतलब क्लियर हुआ है. अब इस चीज़ को याद रखें कि अपॉर्चुनिटी क्या है. लेट्स मूव ऑन. कॉस्ट क्या है? Well, cost is something that you pay for to achieve a benefit. Something that you pay is your cost. Something that you pay for achieving something is a cost. किसी चीज़ को हासिल करने के लिए जो आप पैसा देते हैं, जो आप चीज़ देते हैं, जो आप वक्त देते हैं, जो आप कोई भी चीज़ जो आप सेक्रीफाइस करते हैं किसी चीज़ के लिए, that's the cost of the thing that you have achieved. For example, मैंने आज एक टॉफ़ी खानी थी, ₹1 की आती है ऑनेस्टली, तो well it's an easy example. So अब मैं वो टॉफ़ी लेने जाता हूँ, मैंने उसके लिए ₹1 खर्च किया, मुझे टॉफ़ी मिल गई. मैंने ₹1 जो खर्च किया वो उसकी कॉस्ट बन गई. अब इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जब आप डिसीजन के तौर पे देखेंगे, किसी डिसीजन की कॉस्ट देखते हैं, तो वो मिस्ड अपॉर्चुनिटी होती है. इन इंग्लिश यू कैन से दैट फॉर अ डिसीजन द मिस्ड अपॉर्चुनिटी ऑफ द डिसीजन इज इट्स कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यूँ कह सकता हूँ कि मैंने आज इस घंटे में
डिसाइड किया कि मैं एक लेक्चर दूंगा। अब जो मैंने चीज छोड़ी, मैंने इसके लिए क्या छोड़ा, मैंने टीवी देखना छोड़ा या दोस्त के पास जाना छोड़ा, ये दोनों मेरी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज हैं, ये दोनों उस डिसीजन की कॉस्ट है। अब जो गलती बच्चे मोस्टली कर जाते हैं इसके अंदर, किसी भी डिसीजन की जब आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं तो यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द प्राइस ऑफ द डिसीजन। आपने उसकी कॉस्ट पे ध्यान, आपने उसकी मॉनेटरी कॉस्ट पे ध्यान नहीं देना, आपने उसके जो खर्चा उसके ऊपर हुआ उस पर ध्यान नहीं देना, आपने इस चीज पर ध्यान नहीं देना कि उसको जो पैसा है वो उसके जो रनिंग में पैसा लग रहा है, जो उसको बिल्डिंग में पैसा लग रहा है। फॉर एग्जांपल हम रोड की बात कर रहे हैं तो रोड की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे ज्यादा पैसा नहीं होता, वो उसकी मॉनेटरी कॉस्ट है। अब आपने याद रखना है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई रिपीट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दो अलग अलग चीजें हैं। जो पैसों में आपको नुकसान हो रहा है, जो आपका पैसा लग रहा है उसके ऊपर, दैट इज मॉनेटरी कॉस्ट, और वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से डिफरेंट है। Opportunity cost is the cost of the decision in terms of the next best alternative foregone in order to achieve it. मैंने आहिस्ता इसलिए बोला है कि आप उसके हर पार्ट पे गौर कर पाए। पहला पार्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ अ डिसीजन। एक डिसीजन की जो आपने कॉस्ट पे की, जो उसके लिए सेक्रीफाइस किया, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसमें हम उसको आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कौन सी कॉस्ट की बात हो रही। मैंने फर्दर बोला कि इन टर्म्स ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, वो चीज आपने एक दफा आपने 4 चीजें करनी थी किसी जगह पे, उनमें से जो उसके आप मोस्ट श्योर थे ना कि मैं यार ये नहीं करता, मैं ये जरूर करूंगा, वो चीज उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, आपको लिस्ट दे देता है एग्जामिनर, 5 चीजें दी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि अ राइटर वॉज टू राइट अ बुक, अ मैगजीन, स्कूल नॉवलेट एंड अ न्यूज पेपर, एंड ही चूजेस टू राइट अ बुक and if he had not written the book, the next best option was to write a magazine. अब वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, वो कहते हैं नहीं यार, बुक की जो पैसे लगे ना बुक पे, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो टाइम लगा यार वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यार जो उसने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वेल दैट्स द प्रॉब्लम, ये तीनों चीजें उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन ने बता दिया है कि उसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था, कि अगर वो बुक नहीं लिखेगा तो वो मैगजीन लिखेगा। इससे आपको क्लियर क्या हुआ कि द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बुक इज मैगजीन। आपको क्वेश्चन में जो भी स्पेसिफाई करता है कि इस चीज जो वो ये काम करता, अगर वो ये ना करता तो वो मोस्ट प्रोबेबली ये काम करता। 3 चीजें करने की चॉइस थी, उसने पहली कर ली, 2 छोड़ दी। जो 2 छोड़ी है उसमें से जो वो अगर मोस्ट प्रोबेबली करता तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है। अनदर एग्जांपल मैं देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल मैंने चॉकलेट खानी थी, मेरे पास 4 चॉकलेट के ऑप्शन थे, डेयरी मिल्क, बर्ग, बाउंटी, सॉनेट। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास पैसे सबके पड़े हुए हैं, मेरे पास इतना, मेरे आप यूं डिटरमिन कर लें कि मेरे पास चारों के पैसे हैं, ठीक हो गया। आपने ये भी डिटरमिन कर लेना है मेरे पास टाइम भी है, आपने इन चीजों को उसमें बीच में ही लाना। अब एग्जामिनर कहता है कि इफ हुनैंसिया बाइज डेयरी मिल्क, मैंने डेयरी मिल्क खरीद ली, लेकिन इफ ही वुडंट हैव बॉट डेयरी मिल्क, ही वुड हैव बॉट सोनेट, इफ नॉट सोनेट ही वुड हैव बॉट बाउंटी। अब वो आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, नीचे आपको 4 एमसीक्यूज दे देगा, उसकी गलती आदत है, 4 ऑप्शन दे देता है, 4 ऑप्शन दे देता है, बंदा है कंफ्यूज, यार 4 ऑप्शन दे दी। अब उसमें हमने गौर ये करना है कि उसने ये वर्डिंग इस्तेमाल की है कि अगर हुनैन ने डेयरी मिल्क खरीद दी, लेकिन अगर वो ये ना खरीदता तो सोनेट खरीदता। बाकी को आपने देखना ही नहीं है, आपने देखना है कि नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी सोनेट, आपने सोनेट पे मार्क कर देना है। अब मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ अ डिसीजन इन टर्म्स ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन इन ऑर्डर टू अचीव इट। एक डिसीजन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट है, वो सेक्रीफाइस है, वो चीज है जो उसने छोड़ी उस डिसीजन को अचीव करने के लिए, और अगर वो उस डिसीजन को अचीव ना करता तो वो उस चीज को करता। अब इसमें बच्चे जो मेजर गलती करते हैं, वो क्वेश्चन देगा यूं आपको, मैं कोई एग्जांपल दोबारा देता हूं, उस पर थोड़ा चेंज आएगा एग्जांपल के अंदर। वो कहेगा हुनैंसिया बॉट अ चॉकलेट, हुनैंसिया ने चॉकलेट खरीदी, डेयरी मिल्क खरीदी, और इफ ही डिडंट बॉट डेयरी मिल्क ही वुड हैव बॉट सोनेट। क्वेश्चन आएगा कि अब फिर रिपीट कर रहा हूं कि हुनैंसिया बॉट अ डेयरी मिल्क, इफ ही वुड नॉट हैव बॉट डेयरी मिल्क ही वुड नॉट हैव बॉट अ सोनेट, एंड वो आपको देगा व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बाइंग अ डेयरी मिल्क। अब उसकी खबासत कह लें कि वो 4 ऑप्शन देता है, द प्राइस ऑफ द डेयरी मिल्क पेड, बच्चा कंफ्यूज। उससे अखीर चीज देगा आपको अगली, टाइम टेकन टू ईट डेयरी मिल्क, बच्चा और कंफ्यूज। तीसरा ऑप्शन होगा कहीं जाके द सोनेट ही वुड हैव बॉट फॉर द इन केस ऑफ डेयरी मिल्क, बच्चा सोचता ही नहीं उस पर, यार सोनेट तो कहाँ कॉस्ट है, कॉस्ट तो नहीं है वो तो एक उसने छोड़ दी। और चौथा आ जाता है कुछ भी और।
अब यहाँ आपने याद रखना है कि मैं आपको फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ अ डिसीजन इन टर्म्स ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। आपने ये बात नहीं भूलनी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होती है, वो उस चीज की टर्म्स में बोली जाती है जिस चीज को छोड़ा गया है। जिस चीज को मैंने उसके लिए छोड़ा है उस चीज को हम उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अगर आप इस चीज को ध्यान में रखोगे जब भी आप इसको कर रहे होंगे क्वेश्चन को, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। हमेशा याद रखना है कि किसी भी डिसीजन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो चीज है जो उसने उसके लिए छोड़ी। अब इस बात पर आते हैं, मैंने डेयरी मिल्क खाने के लिए असल में छोड़ा क्या? मैंने सोनेट छोड़ी। अच्छा, अब कुछ बच्चे इस पे वो करते हैं जी, आर्ग्यू करते हैं कि यार आपने टाइम भी तो छोड़ा, आपका टाइम लग रहा है, आपने कॉस्ट छोड़ी। आपने इन चीजों को इसलिए देखना कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की सबसे बड़ी शर्त ये है कि मैं अगर वो काम जो मैंने किया है वो ना करता तो मैं उनमें से एक काम जरूर करता। क्या चीज क्लियर हुई कि अगर वैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने डेयरी मिल्क मैंने चॉकलेट खानी ही खानी थी, ये आपने अपने ज़हन में क्लियर कर लेना है। मैंने वो टाइम देना ही देना था उस काम को, मैंने वो मनी देनी देनी थी। अब मैं डेयरी मिल्क खा रहा हूँ या सोनेट, ये आपस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मैंने डेयरी मिल्क खाई, सोनेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मैंने सोनेट खाई, डेयरी मिल्क अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन इस चीज को बीच में लाना कि मैंने टाइम कितना स्पेंड किया, मैंने प्राइस कितनी स्पेंड की, मैंने पैसा कितना लगा दिया जी उसके ऊपर, मैंने कोई दोस्त को छोड़ के चला गया, आपने उस चीज को बीच में लाना। आपने हमेशा गौर करना है कि जो चीज मैंने एक काम को करने के लिए छोड़ी और वो चीज मैं अगर वो काम ना करता तो मैं वो चीज करता, इज दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मैं एक्स फॉर्म में कहूँ, जैसे एल्जेब्रा में कहते हैं, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि इफ आई डिड एक्स एंड आई लेफ्ट वाई फॉर इट, एंड इफ आई वुड हैव डन वाई इफ आई हैड नॉट डन एक्स, तो वाई इज दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एक्स। आई होप कि आपको बात क्लियर हुई हो। मैं उर्दू में समझाना चाहूँ तो अगर मैंने एक काम किया, काम नंबर 1 किया, और मैंने काम नंबर 2 नहीं किया, और अगर मैं काम नंबर 2 करता, अगर मैंने काम नंबर 1 ना किया होता तो काम नंबर 2 जो है वो काम नंबर 1 का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मैंने कोशिश तो बड़ी की है आपको समझा पाऊँ कि मोस्टली इवन मुझसे शुरू में गलतियां हुई। मेरे पेपर में फर्स्ट 4-5 MCQs हमेशा गलत होते थे और वजह यही थी कि मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बेस नहीं पता थी। कभी ये बात नहीं भूलनी पेपर के अंदर जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इन टर्म्स ऑफ डिसीजन। वो पैसों में या प्राइस में नहीं तोड़ी जाती, वो डिसीजन में तोड़ी जाती है। इसलिए कभी भी कोई प्राइस या टाइम या ये चीजें उसका वो नहीं होती, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती। हमेशा कोई ऑल्टरनेटिव डिसीजन उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, हमेशा डिसीजन के टर्म्स में होगी, किसी और चीज के टर्म्स में नहीं होगी। और सेकंड कि वो हमेशा वो डिसीजन होगा जो आप करते ही करते अगर आपने ये काम ना किया होता। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट के पास पैसा है, उसने या रोड बनाना है या स्कूल बनाना है या अस्पताल बनाना है, एंड द गवर्नमेंट चूजेस टू बिल्ड द रोड, और वो आपको क्वेश्चन में बताएगा, प्रिसाइसली बताएगा कि इफ द गवर्नमेंट हैड नॉट बिल्ट अ रोड इट वुड हैव बिल्ट अ स्कूल। बड़ी खूबसूरत अंग्रेजी होती है उसकी, बंदा देख के समझ जाता है कि यार इसने खबासत की है इसके अंदर। आपने याद रखना है कि यार जो उसने लिखा है ये एक्चुअली टेलिंग यू कि अगर वो ये ना करता तो ये काम करता। अब आपको ऑप्शन देगा और आपने बगैर सोचे समझना टिक मारना है कि अगर रोड नहीं बनाई, स्कूल ना आता तो स्कूल उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आई होप कि आपको चीज क्लियर हुई है। अच्छा, मैंने ये लेक्चर आज उर्दू में इसलिए दिया है कि दे आर 2-3 फ्रेंड्स ऑफ माइन की जिन्हें बात शेयर की कि फॉर पाकिस्तान यू शुड गिव द लेक्चर्स इन बोथ इंग्लिश एंड उर्दू कंबाइंड। सो आई होप दैट इट्स क्लियर। Again, repeating the main points: opportunity cost is the cost of a decision in terms of the next best alternative for one now to achieve it. It is measured in terms of decisions. It is never measured in monetary terms. It is never measured in price. It is never measured in time. It is always a decision that is to be changed for another decision, and the decision is the one which would have been done on any cost if the particular decision that you took has not been done. I hope कि आपको बात क्लियर हुई हो, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि in case if you are not clear with the point, please message me, please tell me so that I could improve the lecture, because I really want कि students के ये नंबर ना कटें। And honestly, this accounts for almost 5 to 6 marks out of 30 marks in MCQs paper, and in paper 2 it accounts for almost 20-25 marks out of 70 I feel. And I really think that these marks are important because these are an easy mark to gain. Once you hold your grip on it, it would be very easy for you to solve these questions. इसमें मुश्किल नहीं रहती है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन ग्रिप उसमें यानी कि फर्स्ट टाइम होल्ड करना मुश्किल होता है। इसलिए मैंने उर्दू में भी दिया है कि आपको समझ आ पाए, आप उस चीज़ को समझ पाओ। समझ के करोगे आसानी होगी, क्रैमिंग से, रट्टा मारने से, ट्रस्ट मी, इसमें इकोनॉमिक्स में आपको हेल्प नहीं मिलेगी। आई होप दैट्स मच क्लियर। सो प्लीज, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्रे that I'm trying for an admission nowadays, so please pray for my admission. I hope that I would being able to help you the same way I'm doing it now. Alhamdulillah and Allah Hafiz. Hope to meet you soon. Inshallah, I would upload the second part in the night or in the evening. I hope so. Allah Hafiz.